Hello students, welcome back. Today is part 8 of admission of a partner. Today we are going to start how a long question is done. We will discuss 6-mark question. We have already discussed 2 questions, and today we will discuss question number 65 and 67. In the question number 65, it is stated that A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st January 2020 was as follows. A has capital of 4,50,000, B has 2,00,000, creditors are of 30,000. And then there is bank balance, debtors, stock and fixed assets. From 1st February 2020, they agreed to admit C as a partner. Share of A, B and C on the new firm will be 3:1. अब देखिए आपको 3:1 old ratio दे रखा है, new ratio is 3:2:1. So it will help you to find out the sacrificing ratio. C contribute कर रहा है 1,20,000 as his capital and 30,000 for his share of goodwill. Value of fixed assets of the firm be increased by 10% before admission of C. तो यहाँ देखो रिवैल्यूएशन के लिए क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10% बढ़ रही है, दैट इज़ 2,20,000 है, तो 22,000 इंक्रीज़ करेगी एंड दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो. देन देयर इज़ नो रिजर्व और राइट ऑफ करने के लिए कोई लॉस भी नहीं है, तो हम उसको स्किप करेंगे. रिवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लाएगा 1,20,000 एंड देन गुडविल जो लाएगा उसको हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड. सो इफ़ यू सी फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 22,000 एंड दैट प्रॉफिट ऑफ 22,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो विच इज़ 3:1. Then C is bringing capital, bank account debit to C's capital to premium for goodwill. C is bringing 1,20,000 as capital and 30,000 as goodwill. Now if we calculate the sacrificing ratio, we can see that A is sacrificing 3/12 whereas B is gaining 1/12. B ने gain किया. Now if B is gaining तो B को भी goodwill देनी चाहिए. B goodwill कितनी देगी, firm की goodwill का 1/12. C has brought 30,000 rupees for his 1/6 share. C has brought 30,000 rupees for his 1/6 share. तो B अपने 1/12 के लिए हाफ कर लेगा, दैट इज़ 15,000. तो जो 30,000 गुडविल का आया है दैट विल बी गिवन टू ए, ठीक है, एंड जो B ने सेक्रीफाइस किया, B ने गेन किया, वो भी A को मिलेगा 15,000. सो ओनली दीज मच एंट्रीज विल बी पास्ड. नाउ अगर बैलेंस शीट की हम बात करें तो एसेट्स में देखो, बैंक बैलेंस में you already had some amount, you already had 34,000. now C is bringing 1,20,000 and 30, he is bringing 1,50,000, तो 34 और 150, bank balance is 184. debtors will remain the same 1,66,000, stock will remain the same 2,60,000. fixed assets हमने increase किए थे by 22,000, it was earlier 2,20,000, now it will be 2,42,000. creditors हमने change नहीं किए, they will remain the same 30,000. कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी ओल्ड वॉज 450 एंड 2,00,000. अब ए की कैपिटल में क्या क्या करेंगे आप, प्लस जो रीवैल्यूएशन में 16,500 का प्रॉफिट हुआ था वो प्लस होगा, एंड जो उसको गुडविल मिल रही है 30 एंड 50 वो प्लस होगी, तो हिज टोटल विल बी 5,11,500. बी की ओरिजिनल कैपिटल है 2,00,000 में उसको रीवैल्यूएशन का मिला 5,500 वो प्लस होगा, बट जो उसने ए को दिया है 15,000 वो हम करेंगे डिडक्ट, तो इट विल बी 1,90,500. C has brought 1,20,000, तो उसका सेम ही रहेगा 1,20,000. दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर A, B एंड C आफ्टर एडजस्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. A, B आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ऑन 1st April 2018 दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप, ठीक है, they are admitting C, they have admitted C into partnership, ठीक है. he paid 50,000 as capital but nothing for goodwill which was valued at 40,000 at that, ठीक है. अब he is paying, the goodwill of firm is 40,000, he has acquired 1/5 share, तो इसको लानी चाहिए goodwill 8,000 but he is not bringing anything, तो that will be charged by current account, ठीक है. and he has got this equally from both partners, तो sacrificing ratio हो जाएगा equal, that means 1:1, तो 8,000 की goodwill इक्वली मिलनी चाहिए ए और बी को. अच्छा, और क्या डिसाइड किया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है बाय 20,000, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में लॉस में आएगा 2 में. स्टॉक को राइट डाउन करना है बाय 3,200, ये भी लॉस हो जाएगा, 2 में आएगा.
प्रोविजन मेंटेन करना है 1000, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ये भी एक लॉस है, तो ये भी आएगा हमारा डेबिट साइड में 2 में. An amount of 1200 including creditors has been written off as it is no longer payable. ये हमें पे नहीं करना है, ये फ़ायदा हो रहा है. इट विल कम ऑन बाय साइड. ठीक है, तो हमें 3 चीज़ों में 3 एडजस्टमेंट्स में लॉस हो रहा है, दैट विल कम ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, एंड जिसमें प्रॉफिट हो रहा है दैट विल कम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? कैपिटल्स हैं 86 and 64,000. देयर इज जनरल रिजर्व ऑफ 20,000 विच विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन 3:2. क्रेडिटर्स हैं, गुडविल दे रखी है एसेट्स में, इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन ए एंड बी इन 3:2. लैंड एंड बिल्डिंग इज देयर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड कैश इन हैंड. यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब रीवैल्यूएशन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? 4 ऊपर आपको गिवन है. ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले बिल्डिंग हमने डिप्रिशिएट करी है 20,000, 2 बिल्डिंग. स्टॉक को डिप्रिशिएट किया 3,000, 2 स्टॉक 3,200. प्रोविजन मेंटेन किया है 1,000 का, तो 2 प्रोविजन 1,000. क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो फ़ायदा होगा आपका बाय क्रेडिटर्स 1200. देयर इज ओवरऑल लॉस ऑफ 23,000 विच विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन 3:2. दैट इज़ 13,800 ए का एंड 9,200 बी का. कैपिटल अकाउंट की बात करें तो अगेन द सेम स्टेप्स विच हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लासेस. द फर्स्ट थिंग विच यू विल राइट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 86 and 64. रिजर्व दे रखा है 12,000, 8,000, वो हम करेंगे इसमें क्या कहते हैं बाय साइड में, क्रेडिट में डिवाइड करेंगे. गुडविल दे रखी है, गुडविल को करेंगे हम राइट ऑफ, डेबिट साइड में 2 गुडविल राइट ऑफ. रीवैल्यूएशन का लॉस दैट विल ऑल्सो बी पुट ऑन डेबिट साइड, 2 रीवैल्यूएशन 13,800 एंड 9,200. तो यहाँ तक तो अभी हमने कर लिया जो बैलेंस शीट आइटम्स थे. नाउ न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन हिज कैपिटल 50,000, वो हमने लिख दिया. 50,000 के बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करना है जो न्यू पार्टनर को लेके आनी है. अब न्यू पार्टनर को गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल थी 40,000. न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, दैट मीन्स ही शुड ब्रिंग 8,000, बट ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, so we will write by C's current account. He is not bringing his goodwill in cash, so we will write by C's current account, and he has acquired his share equally, so the sacrificing ratio will be equal. 8,000 की गुडविल A and B में डिवाइड होगी इक्वली, 4,000 and 4,000. ठीक है, तो अब टोटल करेंगे एंड बैलेंस, तो बैलेंसेस हमारे पास आ जाएंगे A, B और C के 82,200, B का आ जाएगा 62,800 एंड C विल गेट 50,000. इन बैलेंस शीट क्रेडिटर्स आपके पहले देखिए 31,200 थे, 1,200 डिक्रीज़ हो गए, 30,000 करेंगे. जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया, नहीं आएगा. कैपिटल्स जो भी नए बैलेंसेस निकाले हैं 82,200, 62,800 एंड 50,000 के. असेट्स में कैश इन हैंड 1,200 का 1,200 ही रखा. बैंक बैलेंस 4,000 गिवन है और न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल आ रहा है 50,000, तो इट विल बी 54,000. गुडविल का अमाउंट ऐड नहीं करेंगे बिकॉज गुडविल इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट इन गुड बिजनेस इन कैश फॉर्म. ठीक है, वो आप करंट अकाउंट से कहेंगे. सबसे नीचे देखो बैलेंस शीट में सीज करंट अकाउंट 8,000 रुपीज़. डेटर्स 20,000 के थे, 1,000 हमने प्रोविजन बनाया, 19,000 के हो जाएंगे. स्टॉक हमने डिक्रीज़ किया था बाय 3,200, तो इट विल बी 32,000. प्लांट एंड मशीनरी विल रिमेन द सेम 70,000. लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 कम किया था, इट विल बी 40,000. एंड आवर बैलेंस शीट विल टेली 2,25,000 ऑन बोथ साइड. So this is how we will do question number 67. We will further do more questions in the next videos. Till then, take care and have a great day.